important topics that is not talked about enough. And for that, I had to get a non-lawyer to talk about it, because no lawyer would agree to even raise these issues, because सब law firms में काम करते हैं, सब law firms में वकील हैं, तो law firms को कैसे हम challenge करें या वहाँ पे जो issues होते हैं उनको कैसे highlight करें, मुश्किल होता है. So I found a wonderful resource for that, and I'm so glad that she agreed to come. Ms. Sabahat Bukhari, she's an international award-winning speaker, global top 100 business leaders educator list honoree, and a recognized DEI thought leader of the year, known for driving impact through inclusion at the level of governance, institutions, and systems. She is the founder of the Inclusion Lab and a senior fellow at the International Federation for Information Processing. She has an elaborate profile which I have put out, and I will share it again and again. And she's going to be talking about a subject that we need to make mainstream now and today. And that's about law firms as inclusive workplaces, something that hasn't been talked about enough. Law firms still choose to operate as informal guilds more rather than as proper formal workplaces जहाँ कोई proper HR policy होनी चाहिए, transparency. So we lack those corporate structures, we lack that kind of trajectory, and we have the best person talking to us about it. Ms. Sabahat Bukhari, please join us. I have a very unique challenge of speaking before people जिनके सामने सबके बोलते ही बंद हो जानी चाहिए, है ना. हम लोग बाहर वाले बैठ के ये सोच रहे होते हैं. So I just gave you the rebuttal of that thing. So मुझे मज़ा आता है जब मैं अपनी ज़बान में बात करूँ. So इजाज़त है. लॉ फर्म्स के बारे में जब हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, उससे पहले मैं ज़रा सा पीछे आना चाहूँ और आप लोगों से एक सवाल करूँगी कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि जेंडर न्यूट्रल क्या चीज़ होती है. जेंडर न्यूट्रल का क्या मतलब है? So, gender neutral is not equal. Number one. Gender neutral is not for both. Number two. Number three, normally gender neutral is based on standards. Who made the standards is a question. If I make it, and it's a women-only organization, so पहले तो अपने से एहतसाब शुरू करना चाहिए, ठीक है? So if it's a women-only organization and only women are working, who will be focused? For all the policies, workplace की सारी चीज़ें, कौन focus होगा? मैं ये देखूँगी मेरे इर्द-गिर्द कौन लोग हैं मन, तो वो gender neutral ही policy बनेगी, है ना? क्या ख्याल है? तो जो बनाने वाला होगा वो आपकी वर्क प्लेस को जैसे देखता होगा पॉलिसी वैसी बनती है. सो देयर इज नो स्पेस इन द वर्ल्ड विच इज जेंडर न्यूट्रल. ये बात मैं इसलिए बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करके कह रही हूँ बिकॉज जब भी बात होती है लॉ फर्म्स की, कोर्ट रूम्स की, पब्लिक स्पेसेस की, वॉशरूम्स की, रेस्टोरेंट्स की, एंड देयर आर सो मैनी स्पेसेस जिसके बारे में ये बात कहा जाती है तो जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए. देयर इज़ नथिंग लाइक जेंडर न्यूट्रल. नहीं हो सकती. इसलिए नहीं हो सकती कि मेरी नज़रियाती ज़रूरियात, मेरी बॉडीली ज़रूरियात किसी भी एक मर्द की ज़रूरियात से मुख्तलिफ होंगी. ठीक है, तो मैं न्यूट्रल चीज़ तो दे ही नहीं सकती. मुझे वो चीज़ देनी होगी जो मुझे चाहिए और एक बंदे को जो चाहिए वो चीज़ नहीं हो सकती. राइट? सो व्हाट इज़ कंसिडर्ड एज जेंडर न्यूट्रल इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ डिज़ाइंड फॉर मेन
whoever was designing for men, and then is taken as a standard and applied all together unless it is challenged by non-men. मैंने इसलिए वुमन नहीं कहा क्योंकि मैंने कहा अभी वुमन को थोड़ा सा एक स्टेप पीछे रख। अब आगे नॉन मैन कौन कौन है, ठीक है, तो जो भी हैं उनको अपनी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपसे सवाल करती हूँ, चाइल्ड केयर की ज़रूरत किसको है? क्यों मैन को नहीं है? The reason why child care policy does not exist in courtrooms or the workplaces like law firms, because ये तो नॉन मैन को चाहिए। तो आपकी सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या लॉ फर्म्स आर वर्क प्लेसेस। लेकिन लॉ फर्म्स क्या होती हैं? वो तो फर्म्स होती हैं, और मेरे से ज़्यादा आप लोग कानून जानते हैं। कानून में वर्क प्लेस की डेफिनेशन हमारी थी कि जब कानून में चाइल्ड केयर की फैसिलिटी कब आएगी, कितनी ख़वातीन पर आएगी? 50 ख़वातीन होनी चाहिए, ठीक है, 50 ख़वातीन होनी चाहिए, या आप शॉप हों या इस्टेब्लिशमेंट हों या बट एक्सट्रीमली नॉन स्ट्रक्चर्ड। एंड द प्रॉब्लम इज़ दैट लॉ फर्म इज़ नॉट अ फर्म। बड़ी भी हो जाएगी बहुत तो वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी, वो फर्म ही रहेगी। इसी वजह से कोई लॉ नहीं बनने पाता है। मैंने आपको सिर्फ चाइल्ड केयर की एक एग्जांपल दी है, बट देयर आर सो मैनी लाइक दैट। Harassment, maternity, you have been fighting with all other corporate people for all these things, but did you fight for it for yourself? क्योंकि आपसे सवाल ये होगा कि डू वी नीड इट? आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों के पास की लॉ चाहिए, तो आप कहेंगे लॉ तो बना हुआ है ना, तो अप्लाई कर लो। कैसे? आप लोगों को तो डेफिनेशन ही नहीं अप्लाई होगी। जब डेफिनेशन नहीं अप्लाई होगी तो वहीं से स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। सो अब सवाल ये पैदा होता है विमेन इन लॉ क्या कर सकता है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल कंक्लूड इट। सबसे पहले सवाल करें, व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर अ लॉ फर्म? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल उसी तरह से इंपॉर्टेंट है जिस तरह से वेमेन प्रोटेक्शन लॉ जिस वक्त आया तो हम लोगों ने कॉर्पोरेट के अंदर एक आवाज़ बुलंद की, वेमेन प्रोटेक्शन फर्म आ गए, वेमेन प्रोटेक्शन लॉ आ गया। लेकिन व्हाट अबाउट दोज जो कि इनफॉर्मली हायर होती हैं, वो वेमेन प्रोटेक्शन लॉ में शामिल नहीं थी ख़वातीन। फिर एक दोबारा रिविजन आप लोगों को नहीं लाई, ठीक है। एंड देन एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, देन पीपल, इनफॉर्मल वर्कर्स, सब आते गए, शामिल होते गए, ठीक है। तो सवाल करें व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अस, व्हाट इज़ दैट लॉ दैट शुड बी कवर्ड फॉर अस। नंबर 1, डू वी नीड वन डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑल द फर्म्स बार्स टुगेदर? मैं बड़ी इंटरेस्टिंगली देखती हूँ कि जब भी जा रहे होते हैं तो लाइन से सारे ऑफिसेज होते हैं, तो वाई कांट ऑल ऑफ देम come together and become one organization? They should be treated as one organization, and then a law should apply on that. How it will be done, of course it's your job to do, not my job to tell. So lastly I would say one thing, and I'll conclude here, is मैं आपको सिंपली एक बात कहूँगी, do not go for the corporatization. Corporatization will not work for you. Corporatization की movement will not support what women in law is doing. But what it took one woman to bring in two-finger check, it will take only women to bring in the structure to the firms. No one else will bring. And it will not be beneficial for women only. That I can assure. Because it will be beneficial for whoever. Because what women are good in doing is that they are always thinking of inclusion. They are by default inclusive, क्योंकि उन्होंने ये देखना होता है कि मैंने खातून का भी ख्याल करना है, मैंने मर्द का भी ख्याल करना है, मैंने ट्रांसजेंडर का भी ख्याल करना है, मैंने पर्सन विद डिसेबिलिटी का भी ख्याल करना है, मैंने इन सब की इंटरसेक्शनैलिटी का भी ख्याल करना है। तो आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू कैन थिंक टुगेदर अबाउट इट, एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प इन इट, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू।